students, welcome to Pradis Institute of Education. I, your Ayushi Pandey madam, will be taking science and chemistry for you. See, we did till here, right? We did mole concept and molar mass, and yesterday we saw the percentage composition, that is nothing but the mass percentage of species present in compound. Now what we are going to study today is the empirical formula and molecular formula, okay? Followed by this we will be studying the balancing of the equation as well, because followed by that we have to study the stoichiometry and stoichiometric calculations, right? So for that we need to study balancing also. Whenever we are performing any stoichiometric calculation, we need to deal with an equation that is balanced, okay? We deal in balanced equations always, yes? So we'll have to study that also, because our next class will be for stoichiometry and stoichiometric calculations. We'll directly begin with it, and I'll brief you about the formulas and everything, and then we'll move on to the calculations. So for that we need to know the balancing also. Let's start with today's topic, that is empirical formula for molecular formula. See, what does the statement mean? Whenever we have to calculate the molecular formula of a compound, right, we initially need to know the empirical formula. Clear? Clear? Yes? For knowing the molecular formula of any species, we need to know the empirical formula in the first place, okay? So first क्या करेंगे हम पहले compound का empirical formula निकालेंगे, then we'll move on to calculating or deducing the molecular formula. Clear all of you? चलो, let's start. Let's see what is here. Follow me everyone. An empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. Okay, what does it represent? Simplest whole number ratio. Okay students, what is it representing? Simplest whole number ratio. What is the empirical formula representing? Simplest whole number ratio. Now whatever this comes, okay students, it is not necessary that it is the molecular formula of that compound, okay? It is not at all necessary. Now let us check what is molecular formula. Molecular formula shows that the exact number of different types of atoms present in a molecule of compound. Exact number of different types of atoms. Now what is telling? It is telling the exact number. Okay students, let us see. If the mass percent, now look here, if the mass percent of various elements present in a compound is known, we can calculate the empirical formula for it. Yes, what is written? This is a very important step, because we will be using it in solving the empirical formula or deducing the empirical formula of species, okay? So अगर हमें mass percent पता है, so what can we deduce? We can deduce the empirical formula, whereas if we know the molar mass of a species, we can deduce the molecular formula. So can I say, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो mass percent है और molar mass है, right, they are a very important data, okay, if we want to calculate the empirical formula and the molecular formula. Yes. In case of empirical formula, what is the important data? It is mass percent, and for calculation of the molecular formula, what is the important data? It is, students, tell me, it is molar mass. Okay, clear? Chalo, let's move on to solving. How do we solve an empirical formula? Okay, chalo, let's see. Okay, we have a problem here, and we will see the stepwise solution for the same. Okay, कि कैसे हम empirical formula calculate करेंगे. Look here all of you. See, a compound contains 4.07% hydrogen. We have any compound, okay, say XYZ, any compound that contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% of chlorine, students. Now, okay, this is what is given to us in the question.
what is given next is the molar mass. Okay, why is this molar mass given? Because we have to calculate the molecular and empirical formula both. See, molar mass is an important data for molecular formula, and for empirical formula we have the mass percentage, okay, of species. We can easily calculate. Yes, let's see now. Let's move on to the steps. कैसे calculate करेंगे? Let us see here. See what is written. Step 1. Conversion of mass percentage to grams. Conversion of mass percentage to grams. Okay, since we are having mass percent, what are we having students? Mass percent. It is convenient, है ना, सहूलियत है, easy होता है कि 100 grams यूज करें, right? We are taking starting material as 100 grams, है ना, assume कर रहे हैं ऐसा. It is convenient. देखो 100 से अगर हम परसेंट भी in terms of 100 कैलकुलेट करते हैं, राइट, वो हमारे लिए समझना ईजी होता है. तो यहाँ पर भी it is convenient to use 100 grams of a compound as the starting material. ठीक है. Now in the 100 gram sample of the above compound, 4.07 grams hydrogen, 24.27 grams carbon and 71.65 grams of chlorine are present. ठीक है. जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमें 100 ही मिलेगा. ठीक है. बोलते हैं ना कि अगर सॉल्ट सोल्यूशन बनाया है तो उसमें 70% वाटर है एंड 30% सॉल्ट है, राइट स्टूडेंट्स. तो उसको ईजी करने के लिए देखो परसेंटेज में समझना इस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड. हम कितना परसेंट, क्योंकि सबके मोलार मास अलग अलग होते हैं ना, तो इसीलिए हम इसे ग्राम्स में अपनी कन्वीनियंस के लिए ग्राम्स में लिख लेते हैं. ओके. नाउ अब जब हम इन सब को ऐड करेंगे ना, व्हाट वील गेट 100 ग्राम्स ओनली. ओके, 100% हमें मिलेगा कंपाउंड. ओके. नाउ व्हाट इज द स्टेप 2? तो सबसे पहले हमने क्या किया? कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम्स. मास परसेंट टू ग्राम्स किया बेटा सबसे पहले. This is the first step. We converted mass percentage to grams. Now, step 2 में क्या है? Convert into number of moles of each element. ठीक है. फिर क्या करना है? Number of moles calculate करने हैं. ओके. नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या गिवन मास अपॉन द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, इजंट इट? चलो, नंबर ऑफ मोल्स. देन डिवाइड द मासेस ऑब्टेन्ड अबव बाय रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स. वही बोला है. रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? मोलर मास. यस स्टूडेंट्स, क्या करना है? जो भी नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे उसमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेकेंड स्टेप इज नथिंग बट वो बता रहे हैं कि कैलकुलेट कैसे करेंगे नंबर ऑफ मोल्स. देखो सबसे पहले हमें क्या करना है? मास परसेंट को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. सेकेंड स्टेप क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है. हर एटम की नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है. तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी गिवन है, गिवन अमाउंट अपॉन जो भी उसका मोलार मास है. यस, ऐसे ही करते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट. ठीक है. नाउ दिस गिव्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड. इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं. चलो आगे देखते हैं बेटा. लेट्स सी हियर. यहाँ पर क्या है? अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन है. देखो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने दिए थे? 4.07, है ना. इसको डिवाइड कर दिया है हमने 1.008 ग्राम्स, जो कि इसका मोलार मास है, राइट. तो व्हाट आर वी गेटिंग? दिस. सिमिलरली 24.27 grams जो है, what is this? This is the, tell me, this is the given mass of carbon, है ना. इसको हम डिवाइड करेंगे इसके मोलार मास से. 12 grams होता है. We get this. Then this is the number of moles that we are getting. Okay, see, moles of hydrogen, moles of carbon. Here similarly, given weight upon 35.45 या 35.5 जो होता है इसका मोलार मास होता है, तो वो हमने ले लिया. And now we are getting this as number of moles. Yes students, yes. अब क्या करना है कि इनमें ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि इनमें जितना जो भी सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स का जो भी सबसे छोटा नंबर है ना, यहाँ पर 4.04 है, 2.02 है, 2.02 है, सबसे छोटा क्या होगा? 2.02. तो इन सभी को डिवाइड कर देंगे. देखो हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे? वील डिवाइड 4.04 बाय 2.02. ओके, क्योंकि ये सबसे छोटा है. नाउ
और कार्बन के लिए क्या करेंगे, अगेन जो भी इसका नंबर ऑफ मोल्स है उसको डिवाइड कर देंगे हम, जो भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 2.02 ले रहे हैं ना, इन तीनों क्वांटिटीज़ में सबसे छोटा कौन सा है, यही तो है 2.02, isn't it? Now similarly we'll do for chlorine. What we'll do is we'll divide 2.02, that is its number of moles divided by smallest value 2.02, isn't it? इसको हम जब कट करेंगे बेटा तो क्या आएगा, we'll get 2, 1 and 1, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 1 1 1 1 and ये 2 times जाएगा, तो we get 2 1 1. ओके, देखो स्टेप 3 में यही बोला है, डिवाइड ईच ऑफ द मोल, किसको, each of the mole values, divide each of the mole values obtained above by the smallest number amongst them. मतलब मोल्स जो भी हमने कैलकुलेट किए हैं इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उससे सभी के मोल्स को हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है. तो हमने डिवाइड कर दिया. आगे क्या लिखा है, सिंस 2.021 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, डिविजन बाय इट गिव्स अ रेशियो ऑफ 2:1:1. डिडंट वी गेट बेटा 2:1:1 मिला या नहीं मिला, फॉर हाइड्रोजन क्लोरीन एंड फॉर हाइड्रोजन कार्बन एंड क्लोरीन. यस स्टूडेंट्स, नाउ in case the ratios are not whole numbers, then they may be converted into whole number by multiplying by a suitable coefficient. ठीक है, अगर ये हमें पॉइंट्स में मिल रही हैं तो फिर हम उसे suitable coefficient से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. होल नंबर क्या होता है, प्रॉपर नंबर, कोई डेसिमल नहीं, कोई फ्रैक्शन नहीं, isn't it students? तो अगर हमें वैसा नहीं मिल रहा है तो हम उसे वैसे फॉर्म में ले आएंगे हम उसको, है ना, बाय डिवाइडिंग इट बाय एनी सूटेबल नंबर. ओके, ये हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा. चलो लेट्स मूव ऑन. इतना सबको क्लियर है, 2:1:1 मिल गया हमको, ठीक है. अब देखो स्टेप 4 में आपको यही बता देती हूँ. स्टेप 4 में क्या है, हाइड्रोजन का कितना आया है बेटा, हाइड्रोजन का, अच्छा मैं लिख लूँ ऐसे, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन 3 एटम्स है, इनकी 1 है, इनकी 1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू, कार्बन की 1 है, क्लोरीन की 1 है, तो मैं नहीं लिख रही हूँ, मतलब अंडरस्टूड है वो, ठीक है. हाइड्रोजन के 2 है तो मैं ऐसे 2 लिख दे रही हूँ. ओके, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला. क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये जो हमें मिला अभी स्टेप 3 के बाद जो हमें मिला है, दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला. आगे देखते हैं, लेट्स चेक आउट. सी, write down the empirical formula by mentioning the numbers after writing the symbols of respected elements. क्या करा हमने, ये देखो यही तो किया था पहले, CH2Cl 1 1 and 2 1 2 1, यही रेशियो थी ना इनकी, यही रेशियो मिली थी. Thus the empirical formula of the above compound is CH2Cl. एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना हमने सीख लिया कि कैसे बनाते हैं. नाउ कम्स दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. चलो लेट्स चेक फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. कैसे लिखते हैं, राइटिंग दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो आई विल टेल यू बेटा. इसके लिए हमें सबसे पहले फॉर कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सी, फॉर कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला from empirical formula what we do beta is, what do we do is for calculating molecular formula from empirical formula. सबसे पहला जो है, हमें जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है इसका क्या कैलकुलेट करना है, मास, है ना, मोलार मास कह लो, मोलार मास कैलकुलेट करना है बेटा. ठीक है, तो मोलार मास क्या होगा CH2Cl का, लेट अस कैलकुलेट CH2Cl का मोलार मास. लेट्स सी, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 2 × 1 2 प्लस क्लोरीन 35.5. यस, यही होता है. तो कितना आएगा, let's add 35.5 2 and 12, 5 plus 2 7 2 9 3 plus 1 4, 49.5 है बेटा. What did we get, 49.5. This is the empirical formula mass. This is the empirical formula mass. What is this? This is the empirical formula mass. Just a minute. See here,
49 point, see what did we get? हाँ 49.5 मिला ना, इनको क्या मिला है? इनको मिला है बेटा 49.48, राउंड ऑफ करके 49.9 ही ले लो, वो एक ही बात है, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, ओके 49.5, इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लेंगे? सी, जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे what we'll get is 49.5, है ना स्टूडेंट्स? हमें क्या मिला? We also got 49.5, ठीक है? ये हमारा हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फॉर दैट व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप इज, फॉर कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम एम्पिरिकल फॉर्मूला वी हैव टू कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो जो कि हमें मिला 49.5, एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला का ही तो मास है बेटा, तो व्हाट विल वी से? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इजंट इट? यही बोलेंगे। नाउ लेट अस चेक आउट आगे क्या है। यहाँ तक आया, सबको क्लियर है? राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है? हमने निकाल लिया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट, ठीक है? तो ये हमारा निकल के आ गया था। अब क्या है? डिवाइड द मोलार मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। देखो पहले वाले में क्वेश्चन में हमें क्या दिया था? मोलार मास दिया है 98.96 ग्राम्स मोलार मास दिया है या नहीं? तो सिंपली व्हाट आर दे सेइंग इज 98.96 इज दी मोलार मास। उसको क्या करना है? हमें डिवाइड करना है सिंपली। ओके बेटा, सिंपली डिवाइड करना है। देखो मैं आपको बताती हूँ 98.96 है। चलो लेट्स सी व्हाट इज द सेकेंड स्टेप। डिवाइड मोलार मास जो कि गिवन है ना, गिवन बाय द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं। चलो व्हाट इज इट? कितना दिया है? 98.96 है ना, 98.96 अपॉन डिवाइड करना है 49.48 से। 48 था या 5? 49.5 ले लो। वील गेट, जब इसको हम डिवाइड करेंगे बेटा, देखो इसको अप्रॉक्सीमेटली 100 मान ले, इसको अप्रॉक्सीमेटली 50 मान ले, तो वील गेट 2, है ना? यस, वील गेट द वैल्यू एज 2। yes, now this is the value for n, okay? this is not the number of moles here, ये n वो है जो हम अपने इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ओके चलो, अब थर्ड स्टेप होती है फॉर कैलकुलेशन ऑफ फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर कैलकुलेशन ऑफ फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, what do we do is, जो भी हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है, what is it? n into the empirical formula, जो भी हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है, this is, इसको देख लो, इसको अच्छे से देख लो, ठीक है? फॉर कैलकुलेशन ऑफ फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कर रहे हैं हम? वी आर डूइंग दिस। What are we doing बेटा? We are doing this। इसको देख लो अच्छे से। क्या किया है? n into empirical formula, है ना? तो let's see हमारा for calculation of final molecular formula, molecular formula यहाँ लिख दे रही हूँ। molecular formula हमारा क्या हो जाएगा? molecular formula हमारा क्या हो जाएगा बेटा? मुझे बता दो जल्दी से। It will be n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, n की वैल्यू कितनी आई? 2 आई, इंटू दी एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2Cl। यस, तो जब हम इसे इंटू 2 करेंगे तो कांट वी गेट C2
H4C2, H2 2 ज़ा 4 and Cl2, क्या ये नहीं मिलेगा? This is our final molecular formula बेटा, okay? This is our final molecular formula. Is it clear to all of you? Easy? Yes? थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, स्टेप की बहुत इजी है, कुछ नहीं है, एक दो बार देखोगे, सिंस स्टेप्स ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा लगेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है ना। देखो आपने देखा कि मैंने 2 स्टेप्स, अब यहाँ पर स्टेप्स पर मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ, एक स्टेप दूसरे में बिल्कुल यू नो इट इज़ ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग स्टेप्स हैं, फटाफट करते जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, इट इज़ वेरी इजी, ओके। चलो, गॉट इट, इसको देख लो एक बार अच्छे से, आई होप क्लियर है। क्या आया हमारा? C2H4Cl2, यस। See here, multiply empirical formula by n obtained above to get the molecular formula. हमने वही किया, molecular formula equal to n into the empirical formula. So didn't we get it बेटा? n की वैल्यू 2 आई थी and multiply कर दिया हमने 2 empirical formula में, तो we got C2H4 and Cl2, isn't it? I hope it is clear to all of you. चलो आगे देखते हैं। C. Determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% of iron and 30.1% dioxygen by mass बोला है, ठीक है। चलो let's see, ये एक empirical formula, हमें यहाँ पर molecular formula नहीं निकालना, सिर्फ empirical formula निकालना है। सिंस अब अगर हम चाहें भी कि मैम हमें तो आगे सॉल्व करना है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए बेटा मास परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है, मैंने बोला था डाटा, मास परसेंटेज फॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलार मास फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमारे पास यहाँ मास परसेंटेज तो गिवन है, इजंट इट? मास परसेंटेज तो गिवन है, तो वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, लेकिन बेटा वी डोंट हैव मोलार मास फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इजंट इट? वी डोंट हैव दैट, यस। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम जाकर भी नहीं कैलकुलेट कर सकते, राइट? तो यहाँ पर वी आर ओनली कैलकुलेटिंग दी एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। चलो लेट्स सी कैसे सॉल्व करना है। स्टेप 1 क्या था? परसेंटेज को ग्राम्स में कर लो, परसेंटेज को ग्राम्स में कर लो, है ना। स्टेप 1 क्या था बेटा? चलो लेट मी राइट इट प्रॉपरली, पूरा सॉल्व करेंगे हम ये, है ना। सी स्टेप 1 वॉज परसेंटेज को ग्राम्स में करना है, ठीक है। तो परसेंटेज कितना है? आयरन का कितना दिया है? 69.9%। तो क्या मैं इसको 69.9 ग्राम्स ले लूँ? यस। सेकेंडली किसका दिया है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना दिया है? 30.1%। तो मैं इसको 30.1 ग्राम्स ले रही हूँ। क्लियर? ठीक है, ये हमारी स्टेप 1 थी। यस बेटा। स्टेप 2 हमारी क्या है? स्टेप 2 इज बेटा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, है ना। नंबर ऑफ मोल्स अब हम निकालेंगे आयरन के। ओके स्टूडेंट्स, एक करेक्शन कर लो, यहाँ पर आयरन मैंने आई लिख दिया है, सिंबल क्या है? Fe, ठीक है। व्हाट इज द सिंबल? इट इज Fe, है ना। नाउ यहाँ पर चल इतना छोटा सा करेक्शन कर लो। Fe के लिए व्हाट वी हैव, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, है ना। तो 69.9 लिख दूँ, डिवाइडेड बाय बेटा व्हाट? डिवाइडेड बाय इट्स मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? इट इज गिवन मास अपॉन द मोलार मास। मोलार मास कितना होता है? आयरन का 56 होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिख लो मोलार मास, या कह लो एटॉमिक मास। चलो मास, गिवन मासेस, मास ऑफ Fe 56, ओके ठीक है। ऑक्सीजन का तो पता है रिक्वायर्ड नहीं है। चलो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, व्हाट आर वी गेटिंग? वील गेट 1.25, ओके, एज द नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे क्या आए? नंबर ऑफ मोल्स फॉर आयरन। नाउ ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट वील गेट? वील हैव द गिवन वेट, हाउ मच? 30, यस, 0.1 अपॉन द मोलार मास कह लो, तो व्हाट इज इट? टेल मी बेटा, व्हाट इज इट? 16, यस, 16 है ना। तो
इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वील गेट इट एज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.87। अब मैंने 1.87 क्यों लिखा, देखो 16 2 ज़ा 32 होता है ना, 16 2 ज़ा 32 होता है। अगर हम इसको देखें तो 16 2 ज़ा 32 होता है, तो 30 के लिए कुछ वैल्यू कम आएगी, तो 2 से कुछ कम 1.87 इजंट इट। हम ऐसे अपने मॉरल बीइंग से भी बाय कैलकुलेटिंग इट कर सकते हैं, राइट। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑक्सीजन के लिए। क्लियर, इतना क्लियर है सबको। तो स्टेप 1 हमारी हो गई, स्टेप 2 हमारी हो गई। अब दिस इज नॉट अपॉन एन, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, ओके। चलो आयरन के हो गए। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को थर्ड स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स को हम सिंपलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करते हैं बेटा, सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, इजंट इट। तो चलो कर देते हैं। आयरन के लिए क्या हो जाएगा, वील हैव 1.25 अपॉन, किससे डिवाइड करेंगे 1.25 और 1.87, जो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले हैं इसमें सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1.25 ही है, तो 1.25 से डिवाइड करेंगे दोनों में, है ना। व्हाट डू वी गेट 1। नाउ फॉर ऑक्सीजन अगेन 1.87 इज द नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं सिंपलेस्ट नंबर। सिंपलेस्ट नंबर क्या है यहाँ पर, सिंपलेस्ट 1.25। व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 1.5, we get 1.5, ओके। जब कैलकुलेट करेंगे हम तो we'll get 1.5 समथिंग, ओके। चलो तो ये हमारे पास आ गए, ये हमारे पास आने चाहिए थे बेटा होल नंबर में, है ना। ये वी आर गेटिंग द नंबर्स, बट एज वी स्टडीड these should be in whole numbers, है ना, होल नंबर्स। तो क्या हमें ये होल नंबर्स में दिख रहे हैं, 1 तो है चलो, लेकिन 1.5 तो डेसिमल में है ना। मैंने क्या बोला था कि कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल वैल्यू नहीं चलेगी, अगर होल नंबर में नहीं है तो हम उसे सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके एंड देन वील कन्वर्ट इट इनटू अ होल नंबर। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, 1 सी हियर 1 एंड 1.5 है, 1 एंड 1.5 है ना। क्या करूँ मैं, ये 0 ऊपर कर दूँ, ठीक है, होल नंबर में ही तो कन्वर्ट करना है। तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, वी गॉट द होल नंबर्स, इजंट इट बेटा। या फिर एक काम कर लो, जैसे 1/1.5 है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो व्हाट आर वी गेटिंग 2 एंड 15 2 ज़ा 30 होता है, डेसिमल लग जाएगा 3, तो आया उतना ही 2/3। आप जिस भी तरह से मैथमेटिकली कंफर्टेबल हो, जिस भी तरह का कैलकुलेशन आपको इजी लग रहा है, उस तरह से इसको हम सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने कन्वर्ट कर लिया सिंपल होल नंबर रेशो क्या आ गई बेटा, 2:3 आ गई, यस 2:3 आ गई सिंपल होल नंबर रेशो, यस आ गई ना, 2:3 आ गई सिंपल होल नंबर रेशो। अब हमें क्या करना है, ये तो आ गई सिंपल होल नंबर रेशो। अब सिंपल होल नंबर रेशो आने के बाद दिस इज फॉर बेटा, दिस इज फॉर आयरन, है ना, दिस इज फॉर आयरन एंड दिस इज फॉर ऑक्सीजन, दिस इज फॉर आयरन एंड दिस इज फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब आयरन की कितनी आई सिंपल होल नंबर रेशो, जो भी आता है ये, इसी को तो हम अपना आंसर में लिख लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, Fe2O3 हो गया, yes, this is the empirical formula for whatever the oxide is, oxide of iron है ना, iron oxide बेटा, isn't it, 2 for Fe, 2 for Fe and 3 for oxygen। ये आ गया हमारा empirical formula जो भी क्वेश्चन में आज था, yes। चलो इसको देख लो एक बार, then we'll move on to balancing the equation। Or students, what we can do here is, we got the empirical formula, right? Chalo, balancing we'll see in the next class, okay? That's all for today's lecture. We'll continue with the same topic in our next lecture. For further updates, do like, share and subscribe to our YouTube channel.